सर्वलोकेभ्यः स्वाहा। ओम लोक कल्याणाय विश्व कल्याणाय स्वाहा। ओम विश्वभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। हम लोक कल्याण और विश्व कल्याण के लिए योग करते हैं, यज्ञ करते हैं અને એની જરૂરત એના માટે વધારે થઈ ગઈ છે। આજે અમે તો અહીંયા યોગ યજ્ઞ કરી રહ્યા છીએ અને આ યજ્ઞાગ્નિથી આપણું જીવન આનંદિત થાય છે, પણ યુદ્ધની અગ્નિમાં યુક્રેન રશિયાથી માંડીને આખી દુનિયામાં એક તબાહીનું વાતાવરણ છે। આમાં પણ યોગની જરૂરિયાત છે, કેમ કે યોગ વગર આ યુદ્ધની જે અશાંતિ છે અને લોકોને આમ પણ લાગે છે કે કાલે કોઈ ચાઇનાથી, કોઈ પાકિસ્તાનથી કે કોઈ પણ દેશથી ભારતનું યુદ્ધ તો નહીં થઈ જાય, એટલા માટે દરરોજે મારે સાથે દરરોજ આપ યોગ યજ્ઞ કરજો, ત્રાટક કરજો, દીપકનો ત્રાટક કરજો, સૂરજનો ત્રાટક કરજો, જલનીતિ સૂત્રનીતિ કરજો, યોગ યજ્ઞ આયુર્વેદ નેચરોપેથી પંચકર્મ ષટકર્મ ચિકિત્સાઓ કરીને તમે મોટા મોટા રોગોને મટાડી શકો છો। સવારે ઉઠીને ઓંકારનો નાદ કરજો અને શંખનાદ કરજો। અને શાંતિ સાથે પ્રાણાયામ કરજો। ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ, ભ્રામરી, ઉદ્ગીત, શીતળી, શીતકારી, ચંદ્રભેદી, સૂર્યભેદી આ પ્રાણાયામો તમે યજ્ઞ સાથે કરશો તો ગુજરાતથી માંડીને આખા દેશના કોઈ પણ બાળક યુક્રેનમાં જે ભણવા ગયા અને ઘણા બધાના અભિભાવકો, પરિવારો, કુટુંબો ત્યાં રહેતા હોય, 7,000 થી વધારે લોકો તો આવી ગયા, 3,000 થી વધારે લોકો આજે પણ ત્યાં છે। એનું શું થશે? એ બધા કેમ ત્યાંથી નીકળશે? હિંમત સાથે, ઉત્સાહ સાથે, હાથમાં તરંગા લઈને જ્યાં જગ્યા મળે ત્યાંથી નીકળ પડો। કોઈ તમારા ઉપર કોઈ અટેક નહીં કરે। બસ હોંસલા રાખજો અને ઓંકારનો, ગાયત્રીનો જપ કરજો અને એનાથી બહાર નીકળજો। મૌન ધ્યાન પણ જરૂરી છે। મૌન થઈને અથ યોગાનુશાસન યોગશ્ચિત્ત વૃત્તિ નિરોધ। જે મારે ચારુય બાજુ આ પુષ્પિત પલ્લવિત વાતાવરણ છે, ધ્યાનનો નિનાદ છે, ઓંકારનો નિનાદ છે। ઓમ સર્વમ ખરોદમ બ્રહ્મ, ઓમ ક્રતૌ સ્મરમ કૃભી સ્મરમ કૃતમ સ્મર તસ્ય વાચક પ્રણવ તજપસ્તદર્થ ભાવનો મૌમિત્રિકાક્ષરમ બ્રહ્મ। ઓંકારનું ધ્યાન કરજો અને આ યોગનો અભ્યાસ। મૌન ધ્યાન, શ્વાસો સાથે ઓંકારનો, ગાયત્રીનો ધ્યાન। ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યમ ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્। આવી રીતે જે ઓંકારનો, ગાયત્રીનો ધ્યાન કરશે અને આ જે પવિત્ર વાતાવરણમાં રહેશે એને તો કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય જ નહીં। અહીંયા પણ અમે યોગાગ્રામમાં છીએ, અહીંયા 11 યજ્ઞશાળાઓ છે અને અહીંયા અમે ડિફરન્ટ થેરાપીની સાથે યજ્ઞ થેરાપી પણ કરીએ છીએ। અને મનની અશાંતિ માટે જો આ બ્રાહ્મીનો શરબત છે, આ બ્રાહ્મી હોય આ બ્રાહ્મીનો શરબત કરીએ અમે દૂધમાં, અને એમાં આ બાદામ, આ અખરોટ, ચિરોંજી, થોડી કાળી મિર્ચ, થોડી સાકર, એક મધ, આ બધું નાખીને
એનો પાન કરીએ. અને અમે આ ઠંડાઈ અને આ બધા શરબતો અહીંયા મૂકેલા છે, એ જબરદસ્ત છે આરોગ્ય માટે. અને એક વાક્ય લખેલું છે, જો આયુર્વેદેષુ યત પ્રોક્તમ યસ્ય રોગસ્ય ભેષજમ તસ્ય રોગસ્ય શાંત્યર્થમ તેન તેન એવ હોમય. પંચરત્ન સાર સંગ્રહ. આયુર્વેદેષુ યત પ્રોક્તમ યસ્ય રોગસ્ય ભેષજમ તસ્ય રોગસ્ય શાંત્યર્થમ તેન તેન એવ હોમય. આ એક મોટું વિજ્ઞાન છે અને એનાથી મોટા મોટા રોગોને મટાડી શકે છે. અને અમારી સાથે અહીંયા આજે જે બેસેલા છે, એકથી એક મોટા મોટા રોગોને મટાડીને, અને અનુલોમ વિલોમ કરો બધા, અનુલોમ વિલોમ કરતે રહો. અનુલોમ વિલોમ કરી કરીને આંખની પ્રોબ્લેમ, હાર્ટની પ્રોબ્લેમ, દિમાગની પ્રોબ્લેમ, લીવરની પ્રોબ્લેમ, પેરાલિસિસની પ્રોબ્લેમ, શું સારું નહીં થાય? આ બધું સારું થાય, પણ કરવું પડે. અને એ યોગ કરતા કરતા યોગથી શું ફાયદો થાય છે એ વાત આજે આપણે કરવાની છે. હું આસમાનની બાજુમાં જોતો હતો સવારે, તો સૂરજ એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ હતો, અત્યારે પણ છે, પણ થોડાક આમાં વાદળ આવી ગયા છે. વાંધો નહીં, આપણી જિંદગીમાં પણ આવો રોગ વાદળની જેમ હોય અને સૂરજ ઉપર વધે તો બધા વાદળ છટી જાય. હું તો દરરોજ આ તમાશા જોઉં છું, આ ખેલ પ્રકૃતિનો. આવી જ રીતે આના જીવનમાં પણ થોડોક અંધિયારું આવી ગયું હતો અને એ યોગથી પ્રકાશ પામી. તો આજે અમે થોડીક વાત ઘણા બધા રોગો બાબત કરીશ અને એનાથી શું શું ફાયદો થાય એક करता करता सांभलिए. चलो आप तो अनुलोम विलोम करो और क्या क्या फायदा हुआ उसको कहते भी जाओ. हाँ, सबसे पहले मीठू पोद्दार से शुरू करते हैं. हाँ, मैं मीठू पोद्दार गोंदिया से बोल रही हूँ. मेरा 10 साल पहले पॉक्स हुआ था, उसके बाद दूर का रोशनी भी चला गया था और आप पास में का भी रोशनी चला गया. चिकन पॉक्स हो गया? हाँ, 10 साल पहले चिकन पॉक्स हुआ था. उसके बाद से ये परेशानी शुरुआत हुई थी. ये मोटापा सब कुछ, अभी मेरा बॉडी भी बहुत हल्का लग रहा है, मोटापा भी कम हुआ, अभी वजन तोली नहीं हुआ, पेट बहुत हल्का लग रहा है. हाँ. और फिर अभी दूर का रोशनी और पास में का रोशनी का मेरे को नहीं दिखता था. अभी चश्मा उतार के भी पास में का रोशनी, यानी पास में का मैं पढ़ाई कर सकती हूँ. ये तो बड़ा काम कर लिया और बड़ी खुश भी दिखाई. स्वामी जी, मैं प्रभा बत्रा दिल्ली से. मेरे को नजदीक का चश्मा लगा हुआ था, कंप्यूटर में काम करने में बहुत मुश्किल होती थी. अब मैंने दवाई लेकर के दृष्टि और सौम्या दोनों डाली और साथ में जो है आई वॉश करती थी सुबह, उससे जो है मेरा नजदीक का चश्मा उतर गया है. त्रिफला से आई वॉश? हाँ जी, त्रिफला से आई वॉश करती थी, तो जो चश्मा उतर गया है और मैं बहुत बेटर फील करती हूँ. और कोरोना के समय पर जो है मेरी आंखें इन्फेक्शन हो गई थी, उससे रोजाना ये दृष्टि डालने से उससे बहुत फर्क पड़ा, बिल्कुल ठीक हो गई थी. मुझे कहीं बाहर से एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेनी पड़ी. मोटी बात. योग करता करता શું ફાયદો થાય અગલે ભાઈ को देना. ओम स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन. मेरा नाम शोभा है, मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद से आई हूँ. मुझे हार्ट का प्रॉब्लम, मेरा इंजेक्शन फंक्शन 20% हो गया था, तो अभी योग करके और अपनी दवाई लेके 55% हो गया. अभी क्या क्या दवाई ली? कार्डियोग्रिड लिया, हृदयामृत और अर्जुन काथ और सर्वकल्पकात का काढ़ा लेती थी. हवन करती हूँ हर रोज हृदयष्टि और वातेष्टि से, और मुद्रा करती हूँ अपान वायु मुद्रा, और प्राणायाम करती हूँ हर रोज. और आंखों का चश्मे का भी मुझे चश्मा है, लेकिन मेरे 15 साल से नंबर वही है, बढ़ रहा नहीं, कुछ नहीं. आंख को भी बिगड़ने से बचा लिया. हाँ, और हार्ट का 20 से 55 इंजेक्शन फ्रैक्शन बहुत बड़ी बात है. और मुझे माइल्ड पैरालिसिस का अटैक आ गया था, वो भी मैं सोई थी, कैसी नींद खुल गई पता नहीं. और मुझे घर वाले लोग बोल रहे थे कि आपके मुंह थोड़ा सा तिरछा होगा. मैं पैर भी नहीं चला सकती थी, बोल भी नहीं सुन सकती थी, लेकिन बोल नहीं सकती थी. तो तुरंत मुझे ध्यान में आ गया अनुलोम विलोम करके. मैंने अनुलोम विलोम किया, आधे घंटे में मैं ठीक हो गया मेरा. आधे घंटे में? हाँ, आधे घंटे में. जोरदार कर लिया भाई. हाँ, ये मैंने बोला हुआ है, अचानक पैरालिसिस, हार्ट अटैक, आपकी आंखों की रोशनी चली जाए तो आप अनुलोम विलोम शुरू कर दो. इसने सुना हुआ था, याद आ गया, इसको कर दिया अप्लाई. बहुत जोरदार काम कर लिया. आगे दे दो. मैं कोटि कोटि नमस्कार स्वामी जी. मैं अंकुर गुप्ता दिल्ली से.
मुझे कैटरेक्ट बाय बर्थ था। आज से 40 साल पहले मेरी दोनों आंखों का ऑपरेशन हुआ था एम्स में। उसके बाद 2013 में दोबारा ऑपरेशन हुआ। 5 साल से मेरी आंखों में लेफ्ट आई में फ्लोटर था। 5 दिन पहले मैं यहाँ आया हूँ। 4 दिन से मेरा अक्षय तर्पण और सुबह आई वॉश त्रिफला से हो रही है। 50-60% रिलीफ हो गया। सारे डॉक्टर्स ये कहते थे कि इसका इलाज परमानेंट नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ शुरू में मुझे बहुत डर लगा, लेकिन 50% आराम आ गया। तो आज मुझे लगता है कि शायद मैंने ठीक किया। तो ये बड़ी बात है। जो बचपन से कैटरेक्ट था, बहुत मतलब बाय बर्थ बहुत कम होता है ऐसा, अब उसमें भी फायदा हो गया। पीछे भाई को दे लें। ओम नमः प्रणाम। प्रणाम। मुझे डायबिटीज के कारण काला मोतियाबिंद हो गया। हाँ 2008 से ही डॉक्टर ने मुझे कहा कि इसका ऑपरेशन कराओ और फिर आगे देखो, एम्स जाओ। लेकिन चूंकि मुझे प्राणायाम पर विश्वास था, योग पर विश्वास था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। कभी कभी दृष्टि और ये आवास त्रिफला से यही करता रहा और लगातार प्राणायाम 2-2 घंटा 2.5 घंटा करते रहा और आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। यही मैं कितनी उम्र है आपकी आपकी? समझता 72 वर्ष में। 72 में। नहीं तो ये बोलते हैं काला मोतिया, ग्लूकोमा बोलते हैं, आंखों में प्रेशर बढ़ जाता है, जी, प्रेशर जी। रिलीज हो जाता है ना। जी जी। लेकिन लोग ऑपरेशन कराते हैं फिर अंधे होते हैं। आगे देना भाई। मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद से हूँ। हाँ। मुझे रीढ़ की हड्डी में टीबी हो गया था 9 महीने के पहले। वो गोली ले रहा मैं 9 महीने से। अभी प्राणायाम योगा कर रहा रोज, उससे 50% फर्क हो गया। ये तो रीढ़ की हड्डी हाँ। रिकवर नहीं होती है। नहीं ना, मैं चलना ही पता था। 4-6 महीने मसाज किया, चल रहा अभी 2-2, 4-5 दिन में चल। टीबी तो ठीक हो जाएगा, रीढ़ हाँ। की हड्डी रिपेयर कैसे होगी? वो योग आयुर्वेद से ही होगी। हाँ। बस इसको कंटिन्यू हाँ। करना। आगे देना। और मेरा नाम दिनेश यादव है। बिहार सहरसा से रहने वाले हैं। हमको हेपेटाइटिस बी हो गया था। हम पटना दिल्ली बहुत दिखाए, हमको कुछ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदे नहीं हुआ। उसके बाद हम टीवी देख करके आपके योगा करने लगे। 2 घंटा 3 घंटा योगा सुबह, 2 घंटा शाम ओ पूरा जम के किया। जी। हमको तो पूरा गांव का लोग बोल दिया कि अब तो बचवे नहीं करेगा, ये मर जाएगा। तो हम अपना प्राण अर्प दिए स्वामी जी। हाँ। तो उसके बाद हमको 8 आना वहाँ सुधार हो गया टीवी पे, घरे पे। उसके बाद हमारे गांव का बहुत अच्छा आदमी है कुशल किशोर यादव जी, वो इधर बैठा है जी। हाँ? वही हमको बोला कि चलो तुम धैर्यवान हो, धैर्य बन के रहो, तुमको हम स्वामी जी के पास जाएंगे तो लेकर के जाएंगे। तो धैर्य रखा इसने। जी। धैर्य नहीं अच्छी छोड़ा। तरह तुम ठीक हो जाओगे यहाँ पे। तो स्वामी जी यहाँ आए, योगा भी किए और उसके बाद सारा यहाँ पर थेरापी जितना आपके अथी में है योग आश्रम के अंदर उतना किए। उसके बाद हम पूरा ठीक हो गए हैं। ले लो। हेपेटाइटिस लीवर खराब कर देता है, 2-3 करोड़ का होता है उसका। वायरस लोड कंट्रोल करने का खर्चा है, 1-2 करोड़ का लीवर ट्रांसप्लांट का खर्चा है। सबसे बच गया। नहीं तो जी तेरा तो अभी तो 5 ही लाख खर्च हुआ था, 5 करोड़ का खर्चा है इसका। जी जी जी। तो जान बची लाखों पाए, कोई बात नहीं। अब कुछ नहीं बिगड़ेगा बेटा तेरा। आगे देना। ओम बाबा जी, मेरे के 8 साल से दाएं आंख में मोतियाबिंद डॉक्टर ने बताया। हाँ। मैंने बोला ऑपरेशन नहीं कराएंगे। योगा करके अलम विलम करके मैंने 4 दिन मैंने अच्छी दर्पण कराए, मेरे आंख वापस आ गई। हैं? ओम 4 बाबा ही जी। दिन में? हाँ बाबा जी, मैंने दवाई नहीं खाई। अरे तो जोरदार काम कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? कुमकुम मोदी, कुमकुम। झारखंड से आए हैं बाबा जी। हाँ तो कुमकुम अब इसको कंटिन्यू करना। और ये जो आई ग्रिड देते हैं ना आँख के लिए, ये आई ग्रिड जो देते हैं इसको खाते रहना, है ना। मैंने खाया नहीं बाबा जी। इसको आगे खाना तो और आँख अच्छा हो जाएगा। कान के लिए ईयर ग्रिड, और पूरी नस नाड़ी खराब हो जाती है तो न्यूरो ग्रिड आदि औषधियाँ देते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन और आँख के लिए गाजर भी बहुत अच्छी होती है। गाजर का जूस पीना या ऐसे ही खा लेना ना, जूस का पीना, है ना। पीछे देना। ये आँख के लिए हमने दृष्टि और सौम्य आई ड्रॉप, फिर ये ओम स्वामी जी,
बहुत प्रकार के ये दृष्टि सौम्य आई ड्रॉप, गुलाब जल में आंवला की सूखी कली डाल करके इसको भिगो देते हैं, उसको डालते हैं, मात्र फ्लग्रित खिलाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका बड़ा जबरदस्त लाभ होता है। तो आंख માટે તો આ બધું પછી અમલકરે સારે સપ્તામૃતલો મુક્ત શક્તિ ભસ્મ પણ અમે આપીએ છીએ અને ઘણા બધા તો આમ આ જલનેતિ, સૂત્રનેતિ, ત્રિફલાનો આયવાસ, અક્ષિતર્પણ અને એનાથી જ સારું થઈ જાય। जी ओम स्वामी जी। ओम। हम नेपाल से हैं और जनकपुर धाम से। मेरा नाम रंजना मिश्र है। हम यहाँ 20 तारीख को आए तो हमारी नजदीकी बहुत कमजोर थी। जब हम 10 साल के थे तो हमें कानपुर में ऑपरेशन हुआ था, आंख से पानी आ रहा था। तो यहाँ आने के बाद मेरी जो नजदीकी दूर थी वो आई वाश करवाए और अक्षी तर्पण करवाए और ड्रॉप दिए सौम्या। उसे हमारी जो दूरी कमजोर थी, दूर की दृष्टि कमजोर थी जी, दृष्टि कमजोर थी, पढ़ नहीं पाते थे, नहीं था। हाँ। तो अब वो ठीक है, अब पढ़ लेती है जी। अब मैं अपने से पढ़ के वहाँ चली जाती हूँ नंबर में, जो लाइन खाने के लिए लगती है उसमें। और मैं यहाँ आई थी विशेष, एक गले में गांठ हो गई स्वामी जी। तो वहाँ मैंने दिखाई तो डॉक्टर बोले तुम अमेरिका भी जाओगी तो तुम्हें ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। तो हम वहाँ तो योग क्लास आपके 2008 से ही, जब आप बोले कि योगा क्लास चलाओ तो हम योगा क्लास तो वहाँ चलाते थे स्वामी जी। लेकिन गांठ जो थी हमारी सो बढ़ी नहीं, लेकिन डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन ही करानी पड़ेगी। 1 साल हमने किया घर में, लेकिन मुझे लाभ नहीं मिला, लेकिन बढ़ा भी नहीं। आप बता रहे थे कि इसके लिए मिट्टी, उसमें 4-5 रंग के बताए थे, आदि, हल्दी और अदरक और नीम के पत्ते, तुलसी, यही सब डाल के पीस के लगाओ तो फायदा होंगे। तो हमने लगाया। तो इस बार फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि इसका बढ़ा क्यों नहीं, जस का तस है। फिर से उन्होंने मुझे चेकअप करवाया, क्या कहते हैं उसको, बायोप्सी जी, करवाया। तो जस का तस था। तो हमने ऑपरेशन, फिर भी बोले कि तुमको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। क्या हाल है तेरा? अब जब मैं आई हूँ तो स्वामी जी अब हम प्रमाण बन के जाना चाहते हैं कि हम पूरा ठीक करके ही जाए। अब तो तेरा बहुत हल्का हो गया, मैंने देखा है स्वामी जी। अभी तो पूरा निकल जाएगा तेरा। काचनार, गुग्गल, वृद्धि बाधिका और कर्क्यूमिन गोल्ड खाने के बाद खाली पेट सिस्टोग्रिट एक कंटिन्यू खाना। जी डॉक्टर लिखे वही खा रही हूँ। मैं यहाँ से ठीक होकर ही जाना चाहती हूँ स्वामी जी। ठीक है, ठीक होके भेजेंगे तेरे को, आगे दे दे। ओम स्वामी जी। ओम सुरेंद्र भाई। सुरेंद्र खंडेलवाल, ब्यावर, राजस्थान से। मैं अभी 26 आदमियों का ग्रुप लेके आया हूँ और पिछले 1 साल पहले मेरे को वेल फारसी हो गया था लेफ्ट साइड से। हाँ, मेरी आंख छोटी हो गई थी। अभी एकदम 99% ठीक है मेरी आंख। क्या बात है, ये बड़ा काम कर लिया। अनुलोम कपालभाति में नियमित रूप से कक्षा भी लेता हूँ। नियमित रूप से दूसरों को भी सिखाते हैं। अभी कभी कभी कोई क्लोट आ जाता है, कोई प्रारब्ध है, कोई 365 दिन कक्षा चलती है। होली दिवाली की भी छुट्टी नहीं होती है। क्या बात है, ये तो जोरदार काम है। बरसात, आंधी, तूफान और फिर आंधी तूफान, फिर कहाँ करते हो? वो शेड बना हुआ है, कवर्ड शेड। शेड ही बना दिया? हाँ, शेड बना दिया। ये एक पूरा 16,000 स्क्वायर फीट कल योग स्थान के लिए खरीदा है। क्या बात है, ये जोरदार काम किया सुरेंद्र भाई आपने। ये बड़ा पुण्य का काम। और अभी बराबर ग्रुप आ रहे हैं हमारे बिहार से, बड़े जिनको भी समस्या है यहाँ भेजते रहते हैं सुरेंद्र भाई। हाँ जी। बहुत आशीर्वाद सुरेंद्र भाई, आगे देना बहन को। स्वामी जी, मैं महाराष्ट्र अहमदनगर से आई हूँ। हमारा पूरा ग्रुप है स्वामी जी। मैं 2007 से आपसे जुड़ी हूँ और मेरे को आँख का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं अब तक। मैं 74 साल की हूँ। 74 साल की? 74 साल की हूँ और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अभी थोड़ा थोड़ा घुटने का दर्द, बस। मैं योग शिक्षिका हूँ। अब उसमें भी थोड़ा सा ये ले लेना, पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रेट और स्पिरुलिना और मोर, ये बताता हूँ ना मैं, ये छोटी छोटी इसको ताकत देने वाली चीजें। हाँ, डेली एनर्जी, डेली एक्टिव। तो 100 साल तक दौड़ती रहेगी। हाँ, मैं भी दौड़ूंगा। हाँ। तू भी दौड़ूंगा। मैं भी योग क्लास लेती हूँ, तब से लेती हूँ।
मैं जब से यहाँ से योग शिक्षिका होके गई क्या हूँ, बात है, सबको योग हरिद्वार में ही मैं योग शिक्षिका का ट्रेनिंग यही काम सबको करना। हाँ, चलो और आगे देना। महाराष्ट्र से हमारा पूरा ग्रुप आया हुआ। बहुत आशीर्वाद। महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से ग्रुप के ग्रुप आते हैं। हाँ। पहले स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं ऐसा मानता हूँ कि स्वामी जी आप इस धरती पे कुछ न कुछ कोई न कोई भगवान का अंश है, जो सभी ये दुनिया के हमारे जैसे लोग आपको देखकर जीते। मेरे को स्वामी जी आंखों की प्रॉब्लम थी, चश्मा था, वो मैंने सूरज का त्राटक करके अनुलोम विलोम करके और अपना आयुष करके और क्या बोलते शीर्षासन करके वो चश्मा उतर गया। स्वामी जी मेरे को कोलाइटिस का प्रॉब्लम भी था, मेरे को सोरेसिस का प्रॉब्लम अभी है स्वामी जी, नींद का भी प्रॉब्लम आता है, लेकिन कोलाइटिस भी ठीक कर लिया। कोलाइटिस मंडूकासन भी ठीक कर दिया स्वामी जी। 15 मिनट में मंडूकासन करता हूँ, उसमें कपाल भारती करता हूँ। हाँ 15-15 मिनट करता है, ये भी 15-15 मिनट करता है दिनेश यादव। स्वामी जी मेरा ऐसा मानना है कि आप सचमुच कोई न कोई भगवान के अंश हो, जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं स्वामी जी, बहुत बड़ा कार्य है इस धरती पे स्वामी जी। मैं बोल नहीं सकते, इतना अच्छा आप काम कर सकते हैं। बहुत आशीर्वाद बेटा। અમે બધા જ ભગવાનના અંશ છીએ। ગીતામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મમેવ અંશો જીવ લોકે જીવભૂતઃ સનાતન। ભગવાનના અંશ છીએ, ऋषियों वंश છીએ। चलो बहुत आशीर्वाद। चलो तुमको भी कुछ कहना? हाँ। ओम स्वामी जी, मेरा नाम हरदम सिंह है, मैं मथुरा जिले का गांव का रहने वाला हूँ, अभी मैं नोएडा रहता हूँ। स्वामी जी मैं 2007 में मेरी आंतों में दिक्कत हुई थी, मैंने एम्स में गंगाराम में मैं सरकारी नौकरी में था, मेरे ट्रांसफर होते रहे, मैं पटना गया, इंदौर गया, मैं चंडीगढ़ गया, मैंने सब जगह इलाज कराया, कोई डॉक्टर कुछ पकड़ नहीं पाता था क्या है। मेरा खाना आधा खा पाता था, मुझे गैस बहुत बनती थी और मैं बहुत परेशान था, मेरा वजन 20-25 किलो कम हो गया था। मैं आपका प्रोग्राम देखते देखते कई बार सोचा कि आपके पास चला जाए। अभी मैं रिटायर हुआ हूँ पिछली साल। मेरी वाइफ ने मुझसे बोला कि आप स्वामी जी का 9 बजे प्रोग्राम देखा करो। मैंने कहा कुछ नहीं होगा उससे, क्या होगा, मैं इतना इलाज करा लिया, कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने जिद करके, मेरी वाइफ यहाँ आई हुई है, स्वामी जी खड़ी है, आपसे मिलना चाहती हैं, अगर आपकी परमिशन हो तो बुला लें। तो क्या फायदा हुआ तेरे को? उसको मेरे स्वामी जी, अभी मैं दिसंबर में, मेरा बेटा कनाडा रहता है, वो आया था, उसने यहाँ डेट ली, यहाँ बुक कराया फरवरी का, 26 फरवरी को स्वामी जी मैं आया हूँ। अब मैं आज की डेट में मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल मैं ठीक हूँ स्वामी जी, मुझे कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है तो ये पुनर्जन्म हुआ है। पत्नी की बात सबको माननी चाहिए। और रिटायरमेंट के बाद तो जरूर माननी चाहिए, तो बुढ़ापा बहुत खराब बीतेगा। तो और रिटायर होकर के सीधा योगग्राम आना चाहिए, नहीं तो जो जिंदगी भर की टूट फूट है ना, उसकी रिपेयरिंग नहीं होती। तो पत्नी ने मेरी ने बोला मैं आ गया स्वामी जी ने, मैं आ ही नहीं पाता। तो क्या नाम है? मेरा नाम हरदम सिंह। हरदम सिंह, ये पहली बार नाम सुना? जी जी ठीक है, हरदम सिंह, जब तक दम में दम है तो हरदम योग करना, ठीक है स्वामी जी। अभी मैं जो है अप्रैल में मैं अमेरिका और कनाडा रहते हैं बच्चे। मेरी पत्नी किधर खड़ी है? पत्नी उधर खड़ी है स्वामी जी, आना चाहती है। अरे इसकी पत्नी को जरूर बुलाओ भाई। ऐसी अच्छी पत्नी भगवान सबको दे, नहीं तो कवारे रहे तो अच्छा। और वो रोजाना योगा करती है स्वामी जी, खुद तो रोजाना ही करती है, और आपकी तो फैन है वो। 9 बजे कुछ भी टीवी नहीं देखने देती, आपका ही प्रोग्राम देखती है पूरी। ये भाई इधर आ बेटा, अब इसने अपने पति को सही राह दिखा दी। ले तेरे को गाय का घी इनाम में देता हूँ, ले जा, अपने बच्चों को भी खिलाना, खुद भी खाना, और 100 साल जीना, गाय के घी खाएगी, मस्त रहेगी। अपने पति के पास जाके बैठ जा, तेरी बहुत याद कर रहा है। वो लास्ट में एक और बैठी है कुर्सी के ऊपर, महारानी साहिबा। तो ओम स्वामी जी, मैं दिल्ली से आई हूँ, मेरा नाम संतोष है। मेरे करोना हो गया था, करोना के बाद मेरे रीढ़ की हड्डी से और घुटने तक ऐसे नस खिंचती थी, मेरी जान निकल जाती थी उठने बैठने में। अब मेरे पति मुझे जबरदस्ती यहाँ लेके आए हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं बाबा जी के पास लेके जाऊंगा, वही ठीक करेंगे। और मुझे आंखों से भी दूर और पास का बहुत कम। अभी कितना फायदा हुआ तेरे को? मेरे को आंखों से काफी फर्क पड़ा है, 15 दिन हो गए मुझे आए हुए, काफी फर्क पड़ा है। और तेरे को अब वो नस खिंचनी महसूस होती है हल्की सी, कम हो कहाँ मैं उठ बैठ नहीं पाती थी, अब कम हो गई ना? बहुत कम। तो ये
जैसे ये पत्नी की बात मानी, तू पति की बात मान के आई तो बिल्कुल मानती हूँ। तो एक दूसरे की मान लेना। बिल्कुल मानती हूँ। ऐसे योग करते रहे तो हंसी मजाक की बातें हैं, लेकिन इनको भी सीरियसली लिया करो कि एक दूसरे को आगे बढ़ाओ, हौसला दो, उभारो। खास करके 50-60 साल के बाद तो एक दूसरे को बहुत सहारा देने की जरूरत है। अभी रीते योग कर दो, एक बीजानु सहयोग कर दो ने सदाए योग कर दो, निरोग રહેજો। વાલીઓ લૂંટાઈ રહ્યા છે, છતાં વાઘાણી સાહેબનો વિભાગ કેમ છે શિશુપ? શાળા કોલેજોમાં બીજી ટર્મની આવતીકાલથી શરૂઆત તો થશે, પણ ફી ક્યારે કરાશે નિર્ધારિત? જુઓ, હું તો બોલીશ રાત્રે 8 વાગે। FRC કેમ સાબિત થઈ રહી છે ભારત?